ऑलराइट गाइस, तो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अपने पे थोड़ा डाउट होता है। हमारे आज की जो गेस्ट हैं उनकी 70 परसेंटाइल आई थी इन कैट 23 एंड देन शी केम बैक स्ट्रॉन्गर और इस साल उनका एफएमएस कन्वर्ट हो गया है। हाउ डिड शी डू इट? क्या था उनका माइंड में? पेपर के टाइम पे अपने आप को डाउट कैसे नहीं किया? वो सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। All right, everyone. So today we have a special guest with us, and मैं उनका introduction नहीं करूँगा. I would like her to introduce herself. So please go ahead. Hello everyone, myself Tanishka. You're watching me on Raj's channel, and because I got in FMS Delhi, probably that's because I'm here, and I got 97.95 percentile in CAT 2024. It was my second attempt, and apart from FMS Delhi, I also converted IIM Kozhikode, Indore, Lucknow, Raipur, Rohtak, and all the other IIMs except ABC. I didn't have a call for A, but for B, I did give an interview, but I could clear it or qualify it. For C, I am waitlisted. That's it for the colleges. About my profile, I had 93% in 10, then 95.8% in 12. Then I did my graduation from Delhi University, Ramlal Anand College. I did my graduation in statistics, BSc Stats Honors, and I had 7.99 CGPA there. And that's it. I don't have any work ex. I am fresher. So first of all, like I'm not reaching out only tier one people. तो मतलब I'm trying to diversify. तो जो भी मेरे को recent candidates मिल रहे हैं, मैं सबको I've tried to reach out to talk to them. Yeah. Yes. Second thing, I would like to ask you, how does it feel to make it to SMS? It's such a great feeling, honestly. When I started my preparation in 2023, FMS was all that I could think about because, obviously, it has a great ROI. And at that point of time, you don't have a lot of knowledge to like count in the other factors of a B school too. But ROI दिख रहा था, तो I was happy कि FMS जाना है. And मतलब धीरे धीरे फिर when I started the preparation, I met different other aspirants, and तब मुझे पता लगा that okay, IIMs are also good. Although I knew IIMs were good, but still, then my goal shifted a bit from FMS Delhi, and I was looking forward to going to Bangalore actually, but then unfortunately I couldn't clear it. But yeah, FMS was also like a dream come true thing for me, and I'm actually very grateful for it. I was not at all expecting an FMS convert क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही बेकार गया था, बहुत ज्यादा बेकार गया था, हद से ज्यादा. बट ठीक है, somehow I did. Maybe इसीलिए वो उन्होंने ग्रिलिंग वाला इंटरव्यू लिया था, Probably. I think लेना चाहते होंगे वो मुझे. All right. So did you self prep या आपने coaching ली कहीं पे? When I started in 2023, तब मैंने coaching ली थी, but for just for few months, for I think 5-6 months, and उसके बाद मैंने छोड़ दी थी because coaching पे कुछ सीन ऐसा था कि टीचर्स नहीं थे, क्वांट्स के टीचर चले गए थे, DILR वाले चेंज हो रहे थे, बस कंसिस्टेंसी VARC के टीचर्स में थी. तो आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट स्टॉप गोइंग टू द कोचिंग एंड जस्ट सिर्फ मैं उनका मटेरियल ले लेती थी, दे देती थी, दैट्स इट. अदर देन दैट फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही की. सेकेंड टाइम तो इट वाज ऑल थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन. That's great then यार. तो अभी you told कि तुमने 2 attempts दिए और it was a great journey. So can you walk us through a journey? कैसा रहा, क्या रहा? How was it? So again, starting from 2023 when I decided to appear for CAT, 2023 attempt, and my preparation was going good. कोचिंग में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जो वहाँ टेस्ट होते थे उनमें भी मार्क्स भी अच्छे जा रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन. बट देन 2023 का पेपर वाज बहुत ज्यादा टफ. तो somehow, and उस टाइम पे ना actually my grandfather died, so that year was too emotional for me.
तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा ऑन माय प्रिपरेशन और ऑन द डे ऑफ द एग्जाम व्हेन आई स्टार्टेड। मतलब मैं पूरा खुश थी कि हाँ प्रिपरेशन अच्छी है, मॉक्स में भी 99 ऊपर वाली परसेंटाइल्स में रहती थी, तो आई वाज हैप्पी कि पेपर तो अच्छा ही जाने वाला है। बट देन वीएआरसी का सेक्शन हुआ एंड आई डिड ग्रेट, अच्छे मार्क्स, मतलब मेरे को पता लग गया था कि मैंने अटेम्प्ट अच्छे किए हैं, ठीक है। देन जब डीआईएलआर स्टार्ट, फॉर द फर्स्ट 20 minutes आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इवन वन क्वेश्चन। एंड उसके बाद मेरी आंखों के आगे उस 20 मिनट के बाद मेरी पूरी एक साल की जर्नी रिफ्लेक्ट हो गई कि भाई ये तो गया, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। और इट वाज द इजीएस्ट सेट, मतलब मेरा सेट सिलेक्शन बढ़िया था, मैंने सेट अच्छा चूज किया, बट समहाउ मैं कोई पॉइंट मिस कर रही थी, बार बार मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी उसको, बट कुछ ना कुछ मिस हुए जा रहा था कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। एंड पूरा वो निकल गया एंड मैं एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई उसमें शायद, पर फिर भी मैंने आई थिंक 2 या 3 टिक्स तो लगाए थे। बट वहां मुझे पता लग गया कि मेरा पेपर हो गया है खराब। उसके बाद तो फॉन्ट्स में भी क्या ही करती मैं, फिर मैंने छोड़ दिया। आई स्टार्टेड, आई वॉज नॉट लिटरली क्राइंग, बट हाँ मैं माथा पकड़ के बैठ गई थी कि अब नहीं होना है ये अटेम्प्ट, तो एंड आई लेफ्ट वहां का एग्जाम सेंटर छोड़ के। बस फिर आफ्टर फ्यू डेज आंसर किया, मेरे घर वालों को मैंने बोला मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, एंड दे वर लाइक हाँ अच्छा गया होगा, अरे चिल कर, देखेंगे देखेंगे। देखा नहीं गया फिर उनसे आंसर की। जब आंसर की आई तो मैंने काउंट किया, पहले वीएआरसी में इट वाज फाइन, 35 समथिंग मार्क्स थे, तो वीएआरसी में तो दे वर ग्रेट। फिर मैं डीआईएलआर खोला, 2 नंबर। फिर मैंने आंसर की बंद कर दी, मैंने कहा छोड़ो, नाउ लेट्स जस्ट लीव इट। मैंने अपने घर वालों को बोला नहीं आया, प्लीज डोंट आस्क मी मेरे कितने नंबर आए, जो भी है प्लीज मत पूछना, नहीं अच्छा है। एंड देन उनके बाद उन्होंने भी नहीं पूछा, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा, बट इट वाज समवेयर अराउंड 70 परसेंटाइल उस टाइम पे। एंड बस आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, तो देन आई जस्ट रिज्यूम्ड माय फोकस टू द कॉलेज इटसेल्फ। वहां पे एंजॉय कर रही थी, फेयरवेल आ रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, फॉर 4-5 मंथ्स आई एंजॉयड दैट टाइम। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई जून 24 में, एंड देन माय फादर अगेन just asked me कि हाँ क्या चल रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो दोबारा? एंड आई वाज सो disheartened by that attempt कि मैंने मना कर दिया। I straight out said no, I don't wanna do an MBA now. I just want to start some business because I had a business idea and it was a great, it still is a great idea and I probably follow it later. बट मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे ये मेरा आइडिया है, जस्ट सपोर्ट में विद इट, और मेरे को एमबीए नहीं करनी है, all that stuff. And we had a fight for literally 2 days, me and my father. He was convincing me कि नहीं एटलीस्ट ये तो दे, तूने इस पे 1 साल लगाया है, एक अटेम्प्ट खराब हुआ है, इट्स ओके, इट्स फाइन, तू दोबारा अच्छा देगी। whatever a parent says to their child वो सब हो रहा है। and I was so hell bent कि नहीं मेरे को नहीं देना ये पेपर, अब नहीं देना है। but then somehow he ended up convincing me कि तू एक बार दे ले, अगर अच्छा नहीं जाता है जो भी होता है देन आई एम ऑल इन, तुझे जो करना है आई विल सपोर्ट, तुझे बिजनेस करना है कर ले, नहीं मत कर। देन ही वाज ओके, चलो ठीक है, पापा इतना मान रहे हैं, लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट, और जितना मेरे में है इन 3 महीनों में लगा दे। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त बिकॉज बेसिक्स वगैरह वर ऑल क्लियर, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त, then September, October, and for 4 months I just did डेली टाइम टेस्ट देती थी मैं दिन में, एटलीस्ट 5-6 हर सब्जेक्ट के, 2-2 3-3 15-15 मिनट्स के टाइमर वाले टेस्ट होते थे जो क्रैक वगैरह के होते हैं। सो आई यूज टू डू दैट, मॉक्स देती थी, दैट्स इट। फॉर 4 months every day I just read articles and gave those tests and just brushed up all the things that I've done. And yeah, then D-Day again, November 2024, पेपर का दिन था, अगेन आई वाज इन स्लॉट 3, तो पहला स्लॉट हुआ एंड मैं खुश थी बिकॉज मेरे को ऐसा था कि ना मैंने प्रिपरेशन कर ली है, एंड दिस टाइम आई वाज काम, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द एग्जाम एनीवेज। तो मेरे को था ठीक है हो जाए एक बार, फिर पापा से फिर बिजनेस की बोलूंगी कि ओके अब स्टार्ट करा दो। तो मेरे को था पेपर खत्म हो बस जल्दी, फिर अपना काम करते हैं, लेट्स सी। तो
I was very calm on the day itself. सुबह सुबह मेरी friend का first slot में पेपर था, so जब वो पेपर हुआ निकल के आई, I asked her, called her कि क्या रहा, कैसा था. तो she said कि paper was too easy. Those were her words कि अब की बार वाला पेपर was too easy और DILR में 5 सेट्स हैं और out of those 5 sets 3 are like cake. बहुत easy है. तो people were panicking कि चेंज हो रहा है और पैटर्न चेंज हो गया, whatever that is. And I was okay कि ठीक है. Then I left my actually उसी दिन ना on 24th November इस दिन कैट का पेपर था and इसी दिन मेरे भाई की शादी. One of my cousins, it was one of my cousin's wedding. तो I was excited कि जल्दी ये 6 बजे पेपर खत्म होगा एंड शादी में भागूंगी. तो मेरे को था जल्दी हो जाए बस. फिर आई वॉज काम, मेरे को ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं था. ऑन माई वे टू द एग्जाम सेंटर आई वॉज डूइंग दोज टेस्ट. आई वॉज स्टिल डूइंग वो क्रैको वाले टेस्ट, बीआरसी का टेस्ट करती हुई जा रही थी मैं, रास्ते में पढ़ती हुई जा रही थी कुछ ना कुछ. फिर the exam started. I was calm. I did everything great. But somehow उसमें कुछ ना कुछ तो आप कहीं ना कहीं you mess up again. BRC again अच्छा गया, DLR great, सबसेट सॉल्व हुए, सब हो रहा है. And I was looking at other people कि यार ये मतलब am I still doing something wrong कि सॉल्व हुए जा रहे हैं और सॉल्व कर सकती थी मैं. क्या पेपर बहुत ज्यादा इजी है क्या कि अभी भी मेरे से सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस हुए हैं और जो भी तुम्हारे माइंड में वैसे क्वेश्चंस रहते हैं. बट ठीक है. फिर क्वांट्स आया. आई डिड 12 to 13 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट्स. बट उसके बाद मैं शादी में चली गई, हो गया पेपर. मुझे पता था जब व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं मेरा एग्जाम खत्म हुआ, आई वाज सो हैप्पी कि ठीक है इस बार आई परफॉर्म. आई वाज हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस कि हाँ मैं कहीं ब्लैक आउट नहीं कर रही हूँ एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड. अब मार्क्स आए, परसेंटाइल कितनी आए, औरों के मुकाबले मैंने क्या किया है वो मैं देख लूंगी, बट अपनी परफॉर्मेंस मेरी अच्छी गई. एंड व्हेन आई लेफ्ट द एग्जाम सेंटर, माय फादर वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज लुकिंग एट मी विद सो मच होप इन हिज आईज कि अब की बार तो इसका एटलीस्ट अच्छा गया हो. एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि हाँ अच्छा गया ना, चलो अब शादी में चलते हैं. ठीक है हो गया. रात में आई वाज चेकिंग द आंसर की और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे क्वांट्स में आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वर रॉन्ग. और तब मुझे सिंक इन हुआ कि मे बी अच्छे मतलब हायर अटेम्प्ट्स करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते. बट देन ठीक है, छोड़ दिया मैंने कि अब आंसर की आई तब देखते हैं. और उसके बाद फिर आंसर की आई तो DILR और VRC का तो पता ही था. तो आई गॉट 36 30 35 36 marks in both DILR and VRC. It was something around 98 percentile in both the sections and I got 13 marks in quants, where I expected कि मेरे कुछ नहीं तो 20 25 तो आएंगे. But no, it was just 13, 84 percentile. And I was like कि अब मुझे calls में आएंगे या नहीं आएंगे, इतना इतनी ये मेरा. Because once you see ना, although मेरे को इतनी hope नहीं थी पेपर से, but once you see कि things are just falling into place and तुम अच्छा करके आए हो तो वो होप्स आ जाती है. लाइक कि ठीक है और दो सेक्शंस में तो आ गए, ओवरऑल परसेंटाइल भी आ गई. बट अब ये 84 का क्या करूंगी. बट थैंकफुली कॉल्स आई मेरे को. आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द IIMs एक्सेप्ट अहमदाबाद. आई filled FMS also, MDI also. I got calls from them too. And then I started preparing for interviews. And I used to think कि preparing for CAT was the hardest thing that I could do. But then interview prep जब शुरू हुई तब मुझे लगा ये होता है, ये क्या है. Because you have to learn everything. They can ask you anything. तो मेरे interviews जब start हुए, they started from 13th Feb. The first interview was IIM Rohtak. Before that I studied stats का सारा क्योंकि it was my graduation subject. तो वो सब मैंने पढ़ा. वहां पे मेरे से उन्होंने महाभारत रामायण पूछना शुरू कर दिया. I was sitting in front of the panelists like कि ठीक है. And I was giving random answers. They were laughing. They were literally laughing in my whole interview कि इसको ये नहीं पता है. तो वहां मेरे को लगा कि अच्छा ये सब भी करके जाना है. Then I started studying other चीजें. That's how everything went. और interviews also went great. सारे अच्छे गए.
apart from FMS, जो कि मेरा सबसे लास्ट इंटरव्यू था. मैंने थर्ड एक ऑलमोस्ट मिनट 20 इंटरव्यूज दिए हैं. लास्ट इंटरव्यू FMS था जो मेरा सबसे बेकार गया. उसके पहले के सारे इंटरव्यूज पर वेरी फाइन और ऐसे स्मूथ इंटरव्यूज थे. किसी में भी ऐसा मेरी ग्रिलिंग दैट्स इट फॉर माय जर्नी. इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड. सब कुछ एक्सपीरियंस करा मैंने. फॉल बैक एंड देन हाउ टू कम बैक फ्रॉम दैट फॉल. इट वाज ग्रेट. टू मेनी लर्निंग्स. वेरी ब्यूटीफुल जर्नी भाई, मतलब आई कैन रिलेट टू दैट सम एक्सटेंट, ठीक है, बट वही बात कि मेरे 2024 कैट में दिक्कत मेरे को ये लगी कि वो बहुत ज्यादा आसान था. आई वॉज टू प्रिपेयर फॉर कैट और वो बहुत ही ज्यादा आसान आ गया. तो वहां जाके मेरे साथ ये चल रहा था कि मैं ही गलत कर रहा हूँ कुछ, तो और स्लो करता हूँ, क्योंकि मेरा LRDI वॉज द वीकेस्ट सेक्शन इन मॉक्स. तो मैं उसमें सेट से 2 4 5 क्वेश्चन निकाल के ताकि कट ऑफ उसकी क्लियर हो वैसे करता था. बट वहां जाके जब मैंने एक सेट सॉल्व किया, मैं बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर तक, फिर मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी कर रहे हैं, तब मैंने रियलाइज किया No, कि that's और अटेम्प्ट करना when है. you have to revise your strategy ना कि तुम्हें पहले पता. Was it your were you in slot 1? 2, पर मैंने स्लॉट 1 का रिव्यू नहीं लिया था क्योंकि मेरे को लगा था अगर वो बोलेंगे बहुत ज्यादा हार्ड है, ये है वो है, तो फिर कहीं मैं Important, पैनिक it's ना हो जाऊँ. actually important रिव्यू लेना. मतलब तुम्हें वही. प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कुछ भी रिव्यू दे सकते हैं. एंड डोंट जस्ट गो बाय द वैल्यू. उनके जो भी वो बोल रहे हैं जस्ट डोंट गो बाय दैट. और जो तुम्हें उसमें से लेने हैं टेक अवे, जस्ट टेक दैट एंड प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. क्योंकि मेरे लिए वही चेंजिंग था ना. मैंने वहां क्योंकि मैंने उससे पूछा, शी सेड पेपर वाज टू इजी. तो वहां मैंने रिवाइज किया कि मेरे को 2 सेट के बाद नहीं रुकना है, 3 के बाद या करना ढाई है सेट के बाद भाई. आई यूज. मतलब मेरे को करते जाना है जितने मिनट से होंगे जब तक टाइम खत्म नहीं हो रहा. आई मेरे को वो कंप्लीट करना है. या हाँ, तो अगर स्लॉट 2 3 है तो उसका फायदा जरूर लेना चाहिए. टेक रिव्यूज पहले 2 स्लॉट से, बहुत इम्पोर्टेंट है. स्लॉट 1 वालों का तो भगवान भरोसे है. ठीक है, उन्हें तो वही रिवाइज करना उनके लिए. हाँ, बल्कि दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ. उनको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है. उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि क्या कि क्या है. होता कुछ है. भी उनको हो रहा है. दे हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजन. और तो फिर क्वांट्स में भी तो ये हुआ था कि क्वांट्स में जाके क्वांट्स वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, और वहां जाके फिर मैं सेल्फ डाउट में चला गया था LRDI की वजह से कि मैं गलत कर रहा हूँ, इतना आसान कैलकाटा पेपर बना रहा है, ऐसा हो नहीं सकता. तो इसलिए रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और लोग मतलब काफी आपका स्कोर बच सकता है अगर आप अच्छे से रिव्यूज लेके जाओ एक बार को. आई और वाज वेरी गुड इन क्वांट्स. तो मेरा तो, पर मुझे फिर भी था कि ठीक है इतने अटेम्प्ट्स किए हैं, ज्यादा ज्यादा 2 3 ही तो गलत होंगे. 8 9 तो फिर भी सही होंगे. बट स्टिल आई वॉज गुड इन VRC एंड क्वांट्स, और LRDI वॉज माई वीकेस्ट सेक्शन. बट कैट रिजल्ट में मेरे को LRDI ही नहीं बचाया था कि एंड तक अटेम्प्ट करते करते वो बच गया. सो मतलब वही है, कैट में जाके यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, मॉक्स में जो भी है. एक बात तुमने कही थी, तुम कैट से पहले काफी ज्यादा काम थी. सो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है when you are calm, you don't expect anything, versus you carry your baggage from your mocks. it is very important to be in a place of mind where you are just totally concerned about what is in front of you rather than जो हो चुका है या जो तुमने किया, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस रही. क्योंकि तुम्हारा एक फिर वो प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रहता कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, या अच्छा मेरे से तो 4 के 4 BRC के RCs कभी सॉल्व भी नहीं होंगी क्योंकि आज तक कभी नहीं हुई है. मे बी पेपर में इजी हो जाए. तो इट वाज फॉर मी, इट वाज द गेम चेंजर, द कामनेस दैट आई हैड. क्योंकि पहले पेपर में जो मेरा पेपर खराब हुआ, मेरे को ऐसा लगता है इट वाज बिकॉज वो 20 मिनट जो LRDI के शुरू के 20 मिनट थे जहाँ पे आई जस्ट ब्लैक्ड आउट आफ्टर दैट कि हाँ अब तो मैंने क्योंकि आई कुड हैव डन एक और सेट या कुछ और भी मैं अगले जो 20 मिनट्स कर सकती थी. बट वो बैगेज याद आ गया ना कि हाँ मैंने इतना प्रिपेयर किया, मेरे मॉक्स में ऐसे मार्क्स आते थे और मेरे से ये नहीं हुआ. तो आई थिंक इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय कैट स्कोर्स. बट ऑल्दो आई स्टिल वुड से दैट कि आई डिजर्व मोर देन व्हाट आई गॉट. 97.97 से तो मतलब अकॉर्डिंग टू माय एफर्ट्स, जो इतने मैंने एफर्ट्स लगाए, जो मैं पढ़ी, आई स्टिल थिंक कि मैं इससे अच्छा कर सकती थी. बट आई नो कि हाँ अब पीछे हट जाना चाहिए बिकॉज आई गॉट इंडियाज सेकेंड बेस्ट कॉलेज
सेकंड बेस्ट बिजनेस स्कूल। तो अब मुझे शांति है कि ठीक है, एबीसी नहीं तो कोई बात नहीं, एफएमएस इज आल्सो अ ग्रेट कॉलेज एंड मे बी आई एम मेंट टू गो देयर। तो हाँ, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो व्हेन टू स्टॉप रनिंग बिहाइंड अ पर्टिकुलर आइडियल दैट यू हैव सेट। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी देख रहा है, अगर आप एलआरडीआई में ना ईगो पे मत लो किसी भी सेट को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हो सकता है आप मॉक्स में तीन तीन चार चार सेट कर रहे हो, बट कैट वाले दिन भले ही बहुत आसान सेट हो, उसको ईगो पे लेके मत बैठो कि अब तो ये मैं सॉल्व करूंगा ही करूँ। चेंज करो, एंड ये स्ट्रैटेजी मॉक्स में जरूर प्रैक्टिस करो कि 20 मिनट कुछ मत करो और 20 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो, तो दैट माइट रियली हेल्प यू गाइस। एनीवेज, एक और चीज आपसे पूछनी चाहिए। You have made it to tier one. So, would you like to be a topper at a tier one? Hypothetical question. Oh, sorry. A bottommost person in a tier one college. या एक टॉपर रहना चाहोगे किसी टीयर टू कॉलेज का? टीयर टू मतलब मेरा टीयर टू ऐसे मतलब एसआईबीएम पुणे या एनएम, इन कॉलेजेस के टॉप पे रहना चाहोगे या एफएमएस एबीसी के बॉटम में रहना चाहोगे? पर्सनली आई थिंक कि जो टॉप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, लेट्स से टॉप 20% ऑफ द क्लास, कहीं भी चले जाओ इन एनी कॉलेज, बी टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री, आई थिंक दे विल शाइन एवरीवेयर। चाहे वो टीयर टू के स्टूडेंट्स हो, इफ दे आर इन टॉप 10 और टॉप 20 ऑफ their class, they are gonna get good, they are gonna get placed in a good company or at a good position, और उनकी career growth अच्छी रहेगी। तो I think instead of being the last in the last percentiles in a tier one college, I would rather be in the top percentiles of a tier two college. One last question from my side. कोई टिप्स जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज? As I already mentioned, just stay calm during your exam. तुमने जो मेहनत कर सकते थे, the controllable factors of your exam, you have aced them already. Or the only thing left is to just control your mental space while giving the exam. और उस टाइम पे तुम्हारा काम होना, तुम्हारा unaffected होना is really important. तुम्हारी जितने भी महीनों की, जितने भी साल की मेहनत है, it can all go to waste in just seconds if you're not, if your mind is not present in that moment. और जितना तुमसे हो सकता है, just do it, just give it your best shot and that's it. उसके बाद होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो it's, I mean, let God direct you the path instead of making your own path. So that's it from my side. Any question you would like to ask me? So it is a personal question to you. As you said, can you tell me something about your journey, about your attempt? As you also mentioned that you gave CAT 2024. Yes. So my journey started last year in September. So 2023 CAT. I gave 2023 CAT just to see how CAT works because I have a 3-year work ex. So I was out of touch of all the exams. So I wanted to see how a competitive exam works and everything. So I started my prep in September 2023, and then I gave CAT. I tanked my VARC there. So I had 90 percentile in LRDI and 90 in bonds, but I tanked my VARC because I over attempted that paper. And then I started in Jan itself. So I also gave SNAP and I had SCMHRD convert that year. But I wanted to, so my dream college was FMS. People aim for A, B, C. I always aim for FMS, that I want to go to FMS, no other college. So yes, so I started prep in Jan this year. So I enrolled with coaching Elite's Grid because I wanted a systematic, say, ठीक है ये दे दो मेरे को ये पढ़ना and I want to do get done with it. फिर हाँ, तो मॉक्स चले तो हम लोग ने सीएल मॉक्स दिए थे, मैंने आईएमएस मॉक्स दिए, क्रैक एंड दिन देयर मॉक्स। सो आई वाज फॉलोइंग 4 टेस्ट सीरीज क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था, बेसिक्स मेरे क्लियर थे, अब बस मॉक्स देने थे और प्रैक्टिस करने के लिए। सही चल रहा था, तो मॉक्स वर गोइंग ग्रेट, सब कुछ सही चल रहा था। बट ऑन द डे ऑफ कैट मैं बहुत, मतलब मेरा काम भी था काफी ज्यादा, बट वही हुआ जब पेपर स्टार्ट हुआ मैं उसको अडेप्ट नहीं कर पाया एंड आई एंडेड अप विद 94 परसेंटाइल, 94.13। और वही हुआ कि एलआरडीआई जो मेरा सबसे वीक सेक्शन था, जिसमें मैं मॉक्स में 80 परसेंटाइल मेंटेन कर रहा था ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो मेरा शाइन किया जो 94 पे गया, बाकी दोनों 90 पे रह गए।
88 पे समथिंग VRC, Nine. 90 94.13 ओवरऑल बना। सो VRC में स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन विच आई स्टिल रिग्रेट जो गलत हुए, जिसपे काफी बवाल भी हुआ था, अगर फॉलो किया होगा तो। अब मतलब वही है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। कि मैंने गेजो सर से पढ़ा था, अगर तुमको पता हो, VRC 1000, वो Really nice. वो भी वही आंसर मार्क करके आया था जो मैं मार्क करके आया था। तो अब कुछ नहीं कर सकते, इस जस्ट फिर एक बार के लिए कैट लक का गेम इसलिए भी कहते हैं कि वो 8 मार्क का I फर्क, would like काफी ज्यादा फर्क to होता है। mention गीजो सर की ना, काफी बच्चे बोलते हैं कि उनका ना ही स्पीक्स टू फास्ट, तो थोड़ा कैच करने में इशू आता है। बट फॉर मी, जो वो कहते थे बस मैं देखती रहती थी, एंड इट वाज सो नाइस। उन्होंने मेरी हाँ, बहुत हेल्प करी डायरेक्टली इन बीआरसी। उनकी क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज, वो जो बार बार एक स्ट्रैटेजीज ही चीज थी ना, बोलते हैं, वो एक ही चीज बोलते रहते हैं, वो आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि हाँ ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको इसको। तो आई रियली enjoyed his way of teaching। और मतलब I would love to meet him someday and thank him for indirect help। तो यस, ये थी मेरी जर्नी। बस तो बस मेरे को बस एक रिग्रेट है क्वांट्स का, क्योंकि क्वांट्स मैं काफी अच्छा कर सकता था, बट वही है LRDI का, और वो थोड़ा सा से आ जाता है ना बैगेज, वो आया, उसकी वजह से क्वांट करा। one बाकी सही है। advice to the juniors की LRDI की वजह से क्वांट्स को mess up नहीं करना है, just उस सेक्शन को उसी सेक्शन में छोड़ के आ जाओ and do your best in the other section। यस, मैं उसको सही बोलता हूँ कि उस टाइम पे कैट पे जो हो रहा है उस पर फोकस करो, बैगेज को छोड़ के। So, is there any advice from your side to your audience? हाँ, मैं तुमको यही बोलता हूँ कि बॉक्स का बैगेज में लेके मत चलो, कैट में जाओ और कैट में सोच सकते हो। कि भले ही मैंने बहुत लोग देखे जो मॉक्स में बहुत ही गंदा कर रहे थे, बट कैट में उनने 99.xx कन्वर्ट किया। तो कैट वाले दिन की बात है, उस दिन आप कितना अपना कंपोजर रख पाते हो, सिर्फ वो है इम्पोर्टेंट कर। So, are you preparing for, I mean, are you planning to give another attempt? Or नहीं, क्योंकि 2 फैक्टर जो मेरे को बॉदर करता है, वो तो एक है एज का फैक्टर, दूसरा है वर्क एक्स। मेरा वर्क एक्स एकदम बॉर्डर लाइन है। अब मैं अगर काम और करूंगा तो फिर पॉइंट्स मेरे कम होंगे, सो फायदा नहीं है उसको करके। बाकी अभी डिसेंट कॉल्स हैं तो देखते हैं, मैं जाके कुछ करते हैं। so, have you converted any college? हाँ, तो बेबी एम्स हैं और बिटसॉम है, अभी उनके बीच में डिसाइड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड गाइस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हर, उनका यूट्यूब और जो भी सोशल होंगे स्क्रीन पे भी होंगे, नीचे भी छोड़ दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो Sure, मच। I'm also very new at YouTube. You can subscribe to my channel. Just visit once. You will see more FMS day at FMS videos from my side. I've not seen anybody post those kind of या videos. I've seen people from IIMs do that video FMS post ki haan, a typical day at IIM Bangalore, or say IIM Ranchi, whatever. But there is no influencer from FMS Delhi. I plan to be one. you can be the first influencer for FMS. Maybe, hopefully. All right then. अगर मेरे से ऐसे ही consistently हुआ तो it's Maybe. nice. All right. All the best to you. Thank you for joining. Thank you for sharing your thoughts. Thank you so much. एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू जॉइन दिस पॉडकास्ट एक गेस्ट की तरह, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो एंड वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। पीस।